That is from May 4 to 11. I welcome all our dear students of BN and MEd who are joining this course, and I hope you will have a great learning experience. This course is being organized by the research cell of our college. It would be a 7 days value added course. I hope you all know what is meant by value added course. A value added course will add more value to your resume. It will help you stand apart from the crowd when it comes to going in the job market. So that is why our college is always doing these efforts to organize such courses to enrich your resume, so that when you go to fetch a job, you appear for an interview, your resume should look good and you should stand apart from other candidates. So this course, talking about this course is especially on basics of research and writing research proposal as well as thesis writing. We have organized this course especially for the MEd class and also for the B.Ed students who are interested in knowing about research and they would pursue research in the later stages of their study. This course will help you to know about the nuances of research. Though research is a compulsory subject in MEd and you have studied the theoretical and the statistical portions, but we have arranged for some experts who will perhaps give you more details about the various aspects involved in preparing a research proposal or compiling a thesis. And I'm sure after these 7 days, you will feel more equipped to complete your synopsis or thesis, which is ongoing, and it will definitely broaden your horizon and help you in later stages of your life. You might take up research at, on a doctorate level, or maybe as a teacher you may take action research. Then also you will find this course to be very useful. So we have 7 days and this is a blended course. We will have 6 days online and 1 day is offline, that is on 7th, that is Saturday. Today, in the inaugural session, we have with us our own principal, Dr. Pargat Singh Garcha. He is going to talk about the first theme, selection of research problem and preparation for research proposal. And dear students, just for your information, your class mates, and tomorrow onwards we all will join by 2:15 so that we can at sharp 2:30 we can start. So I would now request our esteemed principal, Dr. Pargat Singh Garcha ji, to please continue the session and talk about the topic. So over to you, please. Thank you, Jasleen ma'am. A very good afternoon to all the students and staff members who have joined this session of our value-added course. It is our first day, and Dr. Jasleen has beautifully explained the purpose of value-added course, why the college is organizing these value-added courses for the students and what are the benefits for the students. So this particular course is designed by the research cell as well as the MEd in charges for B.Ed and MEd students. We all know that research is a scientific activity. Each and everyone involved in some or another type of research at a simple level or at a complex level. In today's session, we will try to understand what is a research problem and how to select a research problem, what are the different resources of selecting a research problem, and what should be the criteria to evaluate your research proposal or evaluate your research title or research problem. Research proposal and research problem goes together. अगर आपने अपना रिसर्च प्रपोजल बना लिया है, कुछ MEd स्टूडेंट्स ने, they are in process of completing their dissertation, they can go through the evaluation process. Some of the students are in process of preparing their research proposal, finalizing their research problem. They can learn so many new things to frame their research title.
some of the B.Ed student may be looking for an action research in their schools when they will be joining their schools, or they will be planning for any kind of survey during the internship or after completing the B.Ed. So all these activities will be the part and parcel of this 7 days course on basics of research. The topic given to me by the organizers is mainly on research problem and research proposal. So before moving further, I would like to share my screen. I think screen is visible. Yes, sir. Okay, fine. I think now it is in a slideshow mode. So all the students are requested to interfere in between. अगर आप कहीं पे भी आपको लगे कि कोई बात आपको समझ नहीं आई, किसी बात पे आपको डाउट है, you can raise your hand, you can unmute yourself, or you can put your question in the chat box so that we can make it an interactive session. So basically जो रिसर्च प्रॉब्लम है, अगर आप इसको रिसर्च के ऊपर ना जाएं पहले कि रिसर्च की बुक्स में क्या दिया गया है, हमारे डिसर्टेशन में, थीसिस में, एक्शन सर्च में क्या है, उससे बाहर निकल कर आ जाएं. सबसे पहली बात है कि व्हाट इज अ प्रॉब्लम. रिसर्च प्रॉब्लम इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स. वन इज अ रिसर्च एंड सेकंड वन इज अ प्रॉब्लम. व्हाट इज अ प्रॉब्लम? एनी आइडिया? व्हाट इज अ प्रॉब्लम? You can use your chat box, और आई थिंक आप चेक कीजिए कि आप अपने आप को अनम्यूट कर पा रहे हो. अदरवाइज वी विल सी द सिक्योरिटी ऑप्शंस. यस, यू कैन अनम्यूट देमसेल्व्स. सो व्हाट इज अ प्रॉब्लम? एनी आइडिया? एवरीवन फेसेस प्रॉब्लम everywhere, every day. Sir? Yes, please. Sir, to finding a topic related to research. Anything else? Any other student? Area of concern? Yes, Prerna. Trouble we face during the work? Good. Any other addition? Three of you have already added something for discussion. Area of concern, problem is the trouble we face in doing work. अब जो area of concern है, जो problem है, that can be simple, that can be complex. Selection of research पेपर्स. ओके, अब आपको मैं बताता हूं कि सिंपल प्रॉब्लम क्या हो सकती है. यू आर गोइंग टू द कैंटीन. आप एक कोल्ड ड्रिंक चूज करना चाहते हैं. आपकी प्रॉब्लम है कि मैं आज अपने कोल्ड ड्रिंक की चॉइस में लिम्का लूं, कोक लूं या मैं माजा लूं. दैट कैन बी अ सिंपल प्रॉब्लम. दैट कैन बी अ वेरी सिंपल प्रॉब्लम इन डे टू डे एक्टिविटीज. बट दिस इज नॉट अ रिसर्च प्रॉब्लम. दिस इज अ सिंपल प्रॉब्लम. लेकिन उसके लिए भी आपको एक प्रोसीजर जरूर अडॉप्ट करना पड़ेगा. उसको आपके डिफरेंट कोल्ड ड्रिंक की, डिफरेंट टाइप ऑफ कोल्ड ड्रिंक की मेरिट, डीमेरिट, आपका इंटरेस्ट, आपका टेस्ट, अवेलेबिलिटी इन द कैंटीन. सो कई पॉइंट्स आपके लिए कंसिडरेशन हो गए अपनी चॉइस को बनाने के लिए. लेकिन यहाँ पे हम जो सिंपल प्रॉब्लम्स है उससे एक स्टेप आगे जाते हैं रिसर्च में. दैट्स व्हाई वी कॉल इट अ रिसर्च प्रॉब्लम. सो एक तो बात यहाँ से क्लियर, एक बात निकल के आती है कि प्रॉब्लम सिंपल भी हो सकती हैं, प्रॉब्लम कॉम्प्लेक्स भी हो सकती हैं. हर एक प्रॉब्लम, जैसे चूजिंग अ कोल्ड ड्रिंक इज नॉट अ रिसर्च प्रॉब्लम. दैट इज अ सिंपल प्रॉब्लम वी फेस एवरी डे. तो आपने जैसे बताया कि बहुत सी प्रॉब्लम्स होती हैं और ईच प्रॉब्लम हैज सम सॉल्यूशन और सम टाइम मोर देन वन सॉल्यूशन. अगर कोई प्रॉब्लम आपके सामने आई है, चाहे वो सिंपल है, चाहे वो कॉम्प्लेक्स है, चाहे वो रिसर्च की प्रॉब्लम है, चाहे वो जनरल प्रॉब्लम है, each problem has some solution or sometime more than one solution. तो then कि अगर कोई प्रॉब्लम आपके सामने आती है तो यू कैन फाइंड अ सोल्यूशन. आप डिफरेंट वेज अडॉप्ट कर सकते हैं, डिफरेंट टेक्निक यूज कर सकते हैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए. सो व्हाट मेक्स यू डिवाइज न्यू थिंग्स, व्हाट सजेस्ट यू टू ट्राई डिफरेंट वेज. आपको कौन सी चीजें फोर्स करती हैं कि आप नया कुछ देखो, आप कोई नया सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करो. दैट इज अ प्रोसेस विच इज कॉल्ड अ रिसर्च.
आप कैसे अपनी प्रॉब्लम से लेकर अपने सॉल्यूशन तक का सफर, अपनी जर्नी को ट्रेवल करते हो, उसको हम अगर टेक्निकल भाषा में बोलना चाहें, अगर टेक्निकल लैंग्वेज में यूज करना चाहें, तो आप एक प्रोसेस को अडॉप्ट करते हो। एक सिस्टेमेटिक प्रोसेस होती है, उस सिस्टेमेटिक प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रिसर्च। इन सिंपल लैंग्वेज, टू फाइंड सॉल्यूशन वी हैव टू फॉलो सम प्रोसीजर और वी कॉल इट अ रिसर्च। अब किसी भी प्रॉब्लम का, चाहे वो सिंपल प्रॉब्लम है, चाहे वो एक रिसर्च की प्रॉब्लम है, चाहे वो आपके किसी रिसर्च प्रोजेक्ट की प्रॉब्लम है, चाहे वो आपके एक्शन सर्च की प्रॉब्लम है, ईच एंड एवरी प्रॉब्लम के कुछ बेसिक कंपोनेंट होंगे, जैसे रिसर्च के कुछ बेसिक कंपोनेंट होते हैं। कोई भी रिसर्च में क्या होगी, कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको कोई ना कोई एक्टिविटी करना पड़ेगी। दैट एक्टिविटी शुड बी इन अ सिस्टेमेटिक फॉर्म। ऐसे नहीं कि हम किसी भी एक्टिविटी को किसी भी वे से करेंगे और रिजल्ट आ जाएंगे। नो, मैं आपको एक बड़ी सिंपल एग्जांपल देता हूं कि आप सुबह कॉलेज के लिए रेडी होते हो। आप सुबह रेडी होने तक के सफर को देखिए, अपनी जर्नी को देखिए। यू गो थ्रू डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेप्स। वो एक सिस्टेमेटिक प्रोसीजर में है। सुबह से, मॉर्निंग से लेकर कॉलेज आने तक का जो आपका सफर है, आपका 1.5 आवर इज अ सिस्टेमेटिक प्रोसीजर। उसमें आप कुछ आगे पीछे नहीं कर सकते। अगर आपने बात लेनी है, अगर आपने बस लेनी है, अगर आपने अपना व्हीकल चूज करना है, उसका एक सिस्टेमेटिक प्रोसीजर बना होगा कि पहले ये काम होगा, उसके बाद ये होगा, उसके बाद ये होगा। सो यू आर गोइंग थ्रू अ सिस्टेमेटिक प्रोसीजर टू कम टू द कॉलेज। सो ये भी आपके लिए बड़ी सिंपल सी प्रॉब्लम है, सुबह उठ के कॉलेज तक आना। दैट इज अ प्रॉब्लम। आप मार्केट जा रहे हो, तो मार्केट में आपने कोई सूट चूज करना है। जहां लड़के जा रहे हैं, मार्केट में कोई मोबाइल सिलेक्ट करना है, वो भी आपके लिए एक सिंपल प्रॉब्लम है। उसके लिए आप कैसे मूव करोगे? यू विल फॉलो अ प्रॉपर प्रोसीजर। अगर वो आप सिस्टम प्रॉपरली फॉलो नहीं करोगे, यू विल कंज्यूम मोर टाइम, you will consume more energy and you will not get desirable result or solution. So मैं दोनों चीजों को, रिसर्च की बात को और आपकी नॉर्मल लाइफ को कोरिलेट करने की कोशिश कर रहा हूं, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट इन एन इजी वे। तो बेसिक जो कंपोनेंट होंगे किसी रिसर्च के, उसमें प्रॉब्लम होगी, उसमें कोई ना कोई एक्टिविटी होगी, एक्टिविटी सिस्टमेटिक फॉर्म में की जाएगी एंड साइंटिफिक प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाएगा, और एक प्रोसेस और प्रोसीजर से निकलकर हम जाएंगे किसी सॉल्यूशन को अचीव करने के लिए। दीज आर द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ रिसर्च। तो अब अगर इन बातों से हम डिफाइन करने की कोशिश करें, रिसर्च इज अ केयरफुल अनबायस्ड प्रोसेस टू फाइंड आउट द रिलायबल एंड वैलिड सॉल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम इन अ सिस्टेमेटिक ऑर्डर बाय अप्लाइंग साइंटिफिक मेथड। जो मैंने पिछली स्लाइड पे 5-6 कंपोनेंट लिए थे, उन्हीं को जोड़कर क्या बनी है, ये डेफिनेशन बनी है, जिसमें पहली बात क्या आती है? द फर्स्ट पॉइंट इज रिसर्च इज ऑलवेज अ केयरफुल अनबायस्ड प्रोसेस। आप कोई भी रिसर्च करते हैं, उसमें आप अपने आप को, अपने आइडिया को, अपने बिलीफ को बाहर निकाल कर करेंगे तो बेटर रिजल्ट आएंगे। अगर आप किसी भी साइड में पहले ही आप थोड़ा सा टिल्टेड हो गए, पहले से आप थोड़ा बायस्ड हो गए, देन यू कैन नॉट conduct a good research. First of all, you should always be unbiased. Second, you are trying to find out a solution of a problem, but that solution should be a reliable and valid. आपने B.Ed में भी लर्न किया है, आपने M.Ed में भी लर्न किया है, reliability is dealing with consistency and validity is dealing with truthfulness. अगर एक रिजल्ट यहां पे भी एप्लीकेबल है, दूसरी जगह भी वही रिजल्ट है, तीसरी जगह भी है, इट मींस देयर इज कंसिस्टेंसी ऑफ रिजल्ट, वी विल कॉल इट रिलायबल। अगर जिस पर्पस के लिए आप वो रिसर्च कर रहे हैं, अगर आपका वो पर्पस पूरा होता है, अगर वो ट्रूथफुल सिचुएशन आपके सामने आती है, then your research is valid. This is the simplest definition of reliability and validity. Reliability deals with the consistency, validity deals with the truthfulness. आप
जितनी डिफरेंट ऑथर्स की बुक्स रीड करो, चाहे वो इंडियन ऑथर है चाहे वो फॉरेन ऑथर है, बहुत डिटेल में स्टडी करने के बाद यू विल फाइंड दीज 2 पॉइंट्स. रिलायबिलिटी डील्स विद कंसिस्टेंसी एंड वैलिडिटी डील्स विद ट्रुथफुलनेस. आप एक वॉच की एग्जांपल लिए जो आपके सामने वॉल क्लॉक लगा हुआ है. अगर वॉल क्लॉक एट राइट नाउ 2:45 PM का टाइम है, अगर कॉलेज का क्लॉक, आपका क्लॉक, थर्ड पर्सन का क्लॉक, फोर्थ पर्सन का क्लॉक 2:45 टाइम बता रहा है, इट मींस देयर इज अ कंसिस्टेंसी इन क्लॉक्स. सो वी विल कॉल इट रिलायबल. द क्लॉक इज रिलायबल. आज जो टाइम बता रहा है, जहां आप एक ही क्लॉक की एग्जांपल लोगे, मान लीजिए ऑफिस का क्लॉक है, आज 4th of May को भी 2:45 PM इस समय बता रहा है, कल को भी, परसों को भी, आफ्टर 2 days. अगर डेट के चेंज होने के साथ साथ उसका टाइम स्टेबल रहता है, इस टाइम 2:45 को बता रहा है टाइम, देन इट इज रिलायबल बिकॉज द वॉल क्लॉक इज शोइंग कंसिस्टेंसी ओवर द डेज. जैसे जैसे आप डेज में आगे जाते जाते हो, रोज उसका टाइम चेंज नहीं होता, इट मींस इट इज अ कंसिस्टेंट. अगर आप इसको वैलिडिटी को देखना चाहो, मान लीजिए कि ऑफिस के वॉल क्लॉक पे इस टाइम 2:45 PM टाइम शो हो रहा है, लेकिन एक्चुअल में टाइम 3 PM है. आप अपनी वॉच देखो, आप किसी भी ऑनलाइन वॉच पे चेक करो, आप अपने फ्रेंड्स की वॉच देखो, अगर टाइम 3 o'clock है लेकिन ऑफिस का वॉल क्लॉक 2:45 PM बता रहा है, दैट मीन्स द क्लॉक इज नॉट शोइंग द ट्रू पोजिशन. सो ट्रूथफुलनेस इज नॉट हेयर. सो वी विल कॉल इट इनवैलिड बिकॉज हमारा क्लॉक लगाने का पर्पस क्या है? टाइम, सही टाइम देखना. अगर सही टाइम हमें पता नहीं लग रहा, देन वी विल कॉल इट इनवैलिड. सो दिस इज अ सिंपल एग्जांपल ऑफ रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी. देन yes please. Okay, if no question you can mute yourself please. No issue beta, you can mute yourself. Then of a problem in a systematic order by applying scientific method. Systematic order की मैंने आपसे पहले भी बात की थी. हर एक काम करने के लिए एक प्रोसीजर अडॉप्ट होता है. आप स्टार्ट कहाँ से करोगे, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, उसके बाद क्या स्टेप होगा. अगर आप उन स्टेप्स को फॉलो करके मूव करते हो, दैट इज अ सिस्टमैटिक ऑर्डर. लास्ट इज अ साइंटिफिक मेथड. रिसर्च में जब भी आप काम करोगे, आप किसी जो बिलीव्स हैं जिनका कोई लॉजिकल बेस नहीं है, जिनका कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है, आप उन चीजों पे काम नहीं करते हो. यू हैव टू फॉलो अ साइंटिफिक मेथड ऑफ रिसर्च विच इज गिवन इन डिफरेंट बुक्स. You have to follow a proper procedure. A cause and effect should be established in so many places. So you have to follow a scientific method. This is the simple definition of research. For more understanding, you can go to any book, you can go to any report, you can read the definition of different researchers like Creswell, Buddha, the Kothari, and different kind of person have defined research in a different way. But ultimately, the simple conclusion is that, which is already shown to you people, that it is always a careful, unbiased process to find out reliable and valid solution of a problem in a systematic order by applying scientific method. अगर आप कहीं पे रिसर्च की कैरेक्टरिस्टिक्स भी लिख रहे हैं, यू कैन फाइंड 6-7 कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम दीज 4 लाइन्स. इट शुड बी केयरफुली अनबायस्ड, इट इज अ प्रोसेस, it should be reliable, it should be valid. For research you must have a problem. For a solution of a problem you have to follow a systematic order, you have to adopt a scientific method. Such kind of characteristics can be easily taken from these 4 lines. So different types of research. Coming to the research problem, this is a slide. I would like to take just 2-3 minutes on this slide. What are the different types of researches? आप इनको different books में different names के अंडर स्टडी करते हैं. कोठारी की बुक में डिफरेंट होगी, शर्मा की बुक में डिफरेंट होगी, मंगल की बुक में डिफरेंट होगी. अगर आप जॉन डब्ल्यू बेस्ट की बुक में देखोगे तो टर्मिनोलॉजी में भी डिफरेंट.
I have tried to conclude all these type of researches under 3 headings. One is a purpose. आपकी रिसर्च का पर्पस क्या है? आप कुछ बहुत बड़ा काम, बहुत बड़ी रिसर्च, कोई बड़ी खोज करनी चाहते हैं, तो आपके लिए टाइम होरिजन बड़ा है, आप किसी नई चीज की एडिशन करनी चाहते हैं नॉलेज में, यू विल यूज बेसिक, प्योर और फंडामेंटल रिसर्च. अगर आप कुछ चीजों की एप्लीकेशन देखना चाहते हो, आपका पर्पस एप्लीकेशन देखना है, यू विल यूज अप्लाइड रिसर्च. अगर आप स्कूल्स की प्रॉब्लम्स पे काम करना चाहते हैं जिनका इमीडिएट सोल्यूशन चाहिए, यू विल चूज एक्शन रिसर्च. दीज आर द 3 टाइप ऑफ रिसर्चेस ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस. देन ऑन द बेसिस ऑफ टाइम स्पैन, टाइम के अकॉर्डिंगली यू कैन डिवाइड रिसर्च इनटू 3 पार्ट्स. वन, जो आप आज से पहले का समय है, दैट इज अ पास्ट. उसमें हमारी कौन सी रिसर्च आती है? हिस्टोरिकल रिसर्च. आप GHG खालसा कॉलेज ऑफ एजुकेशन की हिस्ट्री देखना चाहते हो, क्या हिस्ट्री है, कैसे ग्रो किया है, दैट इज अ हिस्टोरिकल रिसर्च. गुरु हरगोबिंद साहिब जी की लाइफ पे कोई काम करना चाहते हो, विवेकानंदा की लाइफ पे कोई काम करना चाहते हो, कैसे कैसे हिस्टोरिकल पीरियड्स में आगे बढ़े, दैट इज अ हिस्टोरिकल रिसर्च. आप प्रेजेंट की बात करना चाहते हो, प्रेजेंट में न्यू एजुकेशन पॉलिसी के क्या इम्पैक्ट है, प्रेजेंट में बच्चों के कोविड के क्या इम्पैक्ट है, अगर आप प्रेजेंट में जो ऑनलाइन लर्निंग रिसोर्सेज है उनका क्या पॉजिटिव नेगेटिव इम्पैक्ट है, उनका अचीवमेंट पे क्या इम्पैक्ट है, अगर ऐसे किसी भी टॉपिक पे आप बात करनी चाहते हो जिन पे आप प्रेजेंट डेटा लेकर काम करना चाहते हो, दैट इज कॉल्ड द प्रेजेंट टाइम स्पैन. इसमें आपकी एक्सप्लोरेटरी, डिस्क्रिप्टिव, कोरिलेशन रिसर्च आएगी. अगर आप फ्यूचर में देखना चाहते हो कि अगर मैं ये एक्सपेरिमेंट करूं तो इसका क्या रिजल्ट आएगा, अगर मैं किसी कोलैबोरेटिव वे से, मैं किसी कोऑपरेटिव वे से, मैं किसी ग्रुप डिस्कशन से बच्चों से टीच करूं, मैं 2 मंथ टीच करने के बाद उसका रिजल्ट देखना चाहती हूं या चाहता हूं, तो यू आर यूजिंग एक्सपेरिमेंटल रिसर्च वेयर द रिजल्ट विल कम इन द फ्यूचर. तो टाइम स्पैन के अकॉर्डिंगली पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के बेसिस पे दीज आर द टाइप्स ऑफ रिसर्चेस. देन कमिंग टू द नेचर ऑफ डेटा. जब भी आप रिसर्च करेंगे, यू विल बी डीलिंग विद डिफरेंट काइंड ऑफ डेटा. दैट डेटा के बेसिस पे 2 टाइप्स की रिसर्च हो सकती है. वन इज अ क्वांटिटेटिव, अनदर इज अ क्वालिटेटिव. क्वांटिटेटिव डेटा वो जिनको हम मेजर कर सकते हैं नंबर्स में, आपकी एज, आपका वेट, बच्चों के मार्क्स, और ऑल आर इन क्वांटिटेटिव टर्म्स. तो उसमें आपकी डिस्क्रिप्टिव रिसर्च आ सकती है, कोरिलेशन आ सकती है, एक्सपेरिमेंटल आ सकती है, कैजुअल कंपैरेटिव आ सकती है. अगर आपके पास डेटा नंबर्स में नहीं है, जिनको आप ऐड नहीं कर सकते, सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, डिवाइड नहीं कर सकते, मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, उनकी रेशियोज नहीं निकाल सकते, इट मीन्स यू हैव पैराग्राफ्स. For example, you are conducting a research on a life of Guru Hargobind Sahib Ji. Then आपके पास majority of the data will be in a written form. Different books written on Guru Hargobind Sahib Ji, different descriptions written in different Gurdwara Sahib. So it means now your data is in a qualitative form, in a paragraph form. So जब आपके पास ऐसा डाटा होता है, जब आपके पास इंटरव्यूज हो, आपने 10 लोगों से बात की, सुधार कॉलेज के गांव के लोगों से बात की, आपने जो गुरु गोविंद सिंह मार्ग है, जहां जहां से गुरु हरगोबिंद साहिब निकले हैं, वहां से आपने बात की लोगों के साथ, आपके पास इंटरव्यू आई, लोगों की बातचीत का रिकॉर्ड आया, लेकिन आपके पास नंबर्स में डाटा नहीं है, देन यू विल बी यूजिंग क्वालिटेटिव डाटा. इसके लिए आप नेचुरल इंक्वायरी कर सकते हो, फिनोमेनोलॉजिकल रिसर्च कर सकते हो, एथनोग्राफी कर सकते हो, ग्राउंडेड थ्योरी कर सकते हो. सो दिस इज एन आइडिया अबाउट द टाइप ऑफ रिसर्च. अगर आपको कहीं भी किसी भी लेवल पे, चाहे आपका टीईटी, चाहे सीईटी, चाहे यूजीसी, या किसी लेवल का कोई टेस्ट हो जहां पे आपके लिए रिसर्च की टर्म पता करनी हो, कौन सी रिसर्च किस एरिया से आती है, सो दिस स्लाइड कैन हेल्प यू. So this is just an idea about the types of research. अब आते हैं हम कि रिसर्च करने के लिए कौन सा प्रोसीजर अडॉप्ट करते हैं, क्या डिफरेंट वेज हैं आपके रिसर्च करने के लिए.
सो किसी भी टाइप की रिसर्च हो तो इसमें जैसे हम हिस्टोरिकली इसको देखना शुरू करेंगे तो ये 5-6 स्टेप्स है, यहां से रिसर्च होती रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल पर्सनल एक्सपीरियंसेस पे काम चलता था, देन उनके एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे ट्रेडिशन पे बात होने लगी, देन एक्सपर्ट एंड अथॉरिटीज की बातें आने लगी, उसके बाद लॉजिक आया, लॉजिक में इंडक्टिव मेथड आए, डिडक्टिव मेथड आए, देन साइंटिफिक मेथड आया। दिस इज द हिस्टोरिकल प्रोग्रेशन ऑफ नोइंग समथिंग। अब आप बिल्कुल पुराने समय में ले जाएं जहां पे साइंटिफिक मेथड नहीं था, साइंस नहीं थी, तब प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन कैसे होता था? पर्सनल एक्सपीरियंसेस से, उसके बाद ट्रेडिशन के साथ, उसके पास जैसे एक्सपर्ट जहां अथॉरिटी बताते थे उसके साथ हो जाता था। सो हिस्टोरिकली रिसर्च और नोइंग द समथिंग, अगर आपने कुछ जानना होता तो दीज वर द डिफरेंट वेज टू नो समथिंग इन पास्ट। Sir, please send PPT after class. We have to note. Sure, beta. You will get the PDF in your value-added course. So these are the different ways to know in past. But nowadays, the last point, the scientific method. We are using a scientific method. That's why we have to apply a scientific way to find out our research problem. जैसे मैंने पहली स्लाइड पे बोला था, आपकी हर एक प्रॉब्लम रिसर्च प्रॉब्लम नहीं हो सकती। उसके 2-3 रीजन हो सकते हैं। जहां तो आपकी रिसर्च प्रॉब्लम इतनी सिंपल है, जैसे आपने एक कोल्ड ड्रिंक चूज करना है, आपने एक मार्केट में सूट चूज करना है, तो दैट कैन नॉट बी अ पार्ट ऑफ रिसर्च। वो आपकी सिंपल एक इंक्वायरी हो सकती है, एक्सप्लोरेशन ऑफ एरिया हो सकता है, बट वी कांट कंसिडर इट अ रिसर्च प्रॉब्लम बिकॉज इट हैज नो डायरेक्ट सिग्निफिकेंस विद द स्टेक होल्डर्स। जहां वो बातें भी रिसर्च प्रॉब्लम में नहीं आ सकती जिनको पूरा करना, जिनको कंप्लीट करना, जिनको एक फिक्स टाइम में कंप्लीट करना पॉसिबल ना हो। सो रिसर्च प्रॉब्लम क्या है, कैसे डिफाइन करनी है, क्या उसकी लिमिटेशन है, कैसे उसको फाइंड आउट करना है, वी विल डिस्कस। अगर आपने ऑलरेडी फाइंड आउट कर लिया, यू शुड एवेल्युएट योर रिसर्च प्रॉब्लम। अगर जिन लोगों ने करनी है, दे कैन गो थ्रू दैट प्रोसेस। सो नेक्स्ट इज, I think slides are moving. Yes, sir. Okay, fine. So this is important slide. अगर आपने कोई भी रिसर्च प्रपोजल तैयार करना हो, चाहे आपने अपनी एमएड का करना है, चाहे आपने बीएड में कोई रिसर्च प्रपोजल तैयार करना है, चाहे आपने बीएड और एमएड करने के बाद स्कूल से सीबीएसई को, एनसीईआरटी को, आईसीएसएसआर को या किसी भी फंडिंग एजेंसी को कोई भी प्रोजेक्ट सेंड करना है, बेटा नाउ देयर आर नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज। आपकी रिसर्च सिर्फ एक मेमेड लेवल का पार्ट नहीं है, और बीएड में जैसे एक्शन सर्च पहले एक इंटीग्रल पार्ट होती थी, अभी उसको रिमूव किया गया है, लेकिन स्टिल यू कैन गो इन डिफरेंट एरियाज बाय यूजिंग द बेसिस ऑफ रिसर्च। अगर आपका फंडामेंटल्स क्लियर है, अगर आपको बेसिक नॉलेज है रिसर्च की, बहुत से एंट्रेंस एग्जाम, बहुत से जगह जहां पे इनकी इनडायरेक्ट यूजेस है, और अगर आप स्कूल में जॉब करोगे या किसी कॉलेज में जॉब करोगे, यू कैन यूज योर रिसर्च नॉलेज टू गेट गुड पोजीशन फॉर योरसेल्फ इन दैट पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन। और इवन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, द पंजाब गवर्नमेंट एंड द डिफरेंट एजेंसीज आर गिविंग डिफरेंट फंड्स फॉर रिसर्च प्रपोजल्स, फॉर रिसर्च प्रोजेक्ट्स. That research project can be a very small research project, that can be a very large research project of lakhs of rupees. Different corporate social responsibility के under different corporates are giving a chance to research. हमें find out करना है, हमें explore करना है. We can find different opportunities for research for each of us. So अगर आपने आपके एमएड का रिसर्च प्रपोजल तैयार कर रहे हो, या एक्शन सर्च के लिए कर रहे हो, या आप किसी स्कूल और कॉलेज के तरफ से कोई रिसर्च फंड के लिए अप्लाई करना चाहते हो, तो दीज आर द डिफरेंट थिंग्स। उसमें चैप्टर आगे पीछे हो जाएंगे, लेकिन बेसिक थिंग्स विल रिमेन सेम। सबसे पहला काम क्या है? यू हैव टू आइडेंटिफाई अ रिसर्च प्रॉब्लम। आपको पहले एक एरिया, बड़ा एरिया देखना है, किस फील्ड में आपने काम करना है। उस एरिया को लिमिटेड करते हुए, उस एरिया को डिफाइन करते हुए आपने एक प्रॉब्लम चूज करनी है।
फिर आपने उस प्रॉब्लम को डिफाइन करना है, स्पेसिफाई करना है, जस्टिफाई करना है, आप उस प्रॉब्लम पे काम क्यों कर रहे हैं, उसका क्या एडवांटेज होगा सोसाइटी को, क्या एडवांटेज होगा कॉलेज को, क्या एडवांटेज होगा जिन पे आप काम कर रहे हो, आपको इस चीज को जस्टिफाई करना है। देन उस प्रॉब्लम के रिलेटेड आपको रिव्यू ऑफ लिटरेचर फाइंड आउट करना है। उसके डिफरेंट डिफरेंट वेज हैं। एक सेशन आपका इसी पे प्लान किया हुआ है। ऑनलाइन रिसोर्सेज क्या है, ऑफलाइन रिसोर्सेज क्या है। नेक्स्ट, पर्पस एंड मेथडोलॉजी। फिर आपने कौन सा मेथड यूज करना है, कौन सा प्रोसीजर अडॉप्ट करना है, उस पर बात करनी है। नेक्स्ट इज डाटा कलेक्शन, देन डाटा का एनालिसिस, देन उसकी रिपोर्टिंग। दीज आर द बेसिक कंपोनेंट ऑफ एवरी रिसर्च प्रोजेक्ट, every research proposal. That research proposal can be a simple proposal at school level, that can be an MD research proposal, that can be a PhD research proposal, that can be a research project proposal. So the basics, the fundamentals, the key points will remain same. If our fundamentals are clear, if our basics are clear, then we can confidently move further in this direction. So these are the steps, starting from identification of subject area. The second is problem definition and identification. Third is literature review, then research design, then data gathering, then data processing, then implication, then publishing your research. आपने एक एक स्टेप आगे मूव करते जाना है। Sorry. So these are the different steps of a research, starting from identification of subject area. Coming to the next point, जब भी आप एक रिसर्च की प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करोगे, आपके माइंड में सभी चीजें जो घूमनी चाहिए। ऑल दीज थिंग्स शुड बी इन योर माइंड। वो आपके कंटिन्यूसली सर्कल लगा रही हो। आपने हाइपोथेसिस क्या लोगे, आप कौन सा मेथड यूज करोगे, कौन सा डेटा सिलेक्ट करोगे, ये सभी चीजें आपकी, जब आप प्रॉब्लम को सिलेक्ट कर रहे हो, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर रहे हो, ये चीजें इंटररिलेटेड थिंग्स है। आपकी एक सिलेक्ट की हुई प्रॉब्लम आपको इन सभी चीजों में गाइड करेगी। व्हाट टाइप ऑफ रिसर्च हाइपोथेसिस, व्हाट टाइप ऑफ लिटरेचर, what type of data you will use, what type of data analysis technique will be used. क्योंकि आपकी स्टेटमेंट से आपके ऑब्जेक्टिव बनेंगे, आपके ऑब्जेक्टिव से आपके हाइपोथेसिस बनेंगे, आपके हाइपोथेसिस से आपका डिजाइन, आपका जो आपने टूल्स एंड टेक्निक यूज करनी है, आपने डाटा एनालिसिस टेक्निक यूज करनी है, आपने एनालिसिस करना है, आपने कैसे रिपोर्ट करना है। Each and everything starts with a formulation of research problem. So this is the simple slide which can guide you people to find out different type of sources of problem. देखिए, नॉर्मली तो लाइफ में हमें प्रॉब्लम से डर लगता है। वी ऑलवेज अवॉइड के हमें कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। लेकिन रिसर्च की खूबसूरती क्या है, कि रिसर्च की ब्यूटी क्या है, वी हैव टू फाइंड प्रॉब्लम एंड वी हैव टू फाइंड अ बेस्ट प्रॉब्लम। इसीलिए हम काम कर रहे हैं ना, सारा ये सेशन लगा रहे हैं। वी हैव टू फाइंड एन एप्रोप्रिएट रिसर्च प्रॉब्लम, वी हैव टू फाइंड अ गुड रिसर्च प्रॉब्लम। देखिए, जो लाइफ में होता है, लाइफ से थोड़ा डिफरेंट है। लाइफ में हमें प्रॉब्लम से डर लगता है। वी प्रे टू ऑलमाइटी दैट गॉड प्लीज कीप मी अवे फ्रॉम एवरी काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स। लेकिन रिसर्च क्या बोलती है, रिसर्च क्या बताती है, रिसर्च क्या मोटिवेट करती है? रिसर्च मोटिवेट यू पीपल टू फाइंड अ प्रॉब्लम, टू फाइंड एन एप्रोप्रिएट प्रॉब्लम, फाइंड अ गुड प्रॉब्लम। सबसे पहला सोर्स क्या हो सकता है? योरसेल्फ। आपने रिसर्च करनी है, चाहे आप एमएड लेवल पे कर रहे हो, चाहे आप पीएचडी लेवल पे कर रहे हो, चाहे आप बीएड लेवल पे कर रहे हो, चाहे आप एज अ हॉबी रिसर्च को अडॉप्ट कर रहे हो। यू आर द पर्सन हु कैन प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन सिलेक्टिंग अ रिसर्च प्रॉब्लम। आपकी लाइफ के एक्सपीरियंसेस,
आपने एमएड तक आने से पहले, बीएड तक आने से पहले कितने साल स्पेंड किए हैं अपने, चाहे वो एजुकेशन में, चाहे वो आपकी रूटीन लाइफ है, चाहे वो आपकी स्कूल लाइफ है. योर एक्सपीरियंसेस कैन गिव एन आइडिया टू यू पीपल. यस, this was happening with me, and why this was happening. I would like to find out the causes behind it. I would like to interrelate two things. एक वो लड़की थी, एक वो लड़का था, उसके इतने स्कोर्स आते थे, दूसरे बच्चों के इतने नहीं आते थे, वो क्या करते थे, वो क्या नहीं करते थे. These kind of simple question can guide you people to a research problem or a research variables. Your experiences, your observations, योर रीडिंग्स. आपने कोई जर्नल रीड किया, आपने कोई बुक रीड की, आपने कोई न्यूज़पेपर में आर्टिकल रीड किया. योर रीडिंग्स, योर प्रैक्टिकल इश्यूज आपके बीएड में आए, आपकी असेसमेंट के रिलेटेड, आपके एग्जामिनेशन के रिलेटेड, आपके माइंड में बहुत से क्वेश्चन आते हैं. ये ऐसे होना चाहिए, ये ऐसे होना चाहिए, एजुकेशन सिस्टम को इस तरह करोगे तो क्या हो जाएगा, अगर क्लासरूम में मैं क्वेश्चन आंसरिंग मेथड से टीच करूं इस टॉपिक को तो अच्छा समझ आएगा. All these things can become your research problem by going through a filtration process. आपको वो की एरियाज डिफाइन करने हैं अपने लिए, आपकी रिफ्लेक्शन किसी भी टॉपिक पे. सो सबसे पहली बात, जिस रिसर्चर ने रिसर्च करनी है, he or she is the main source of problem. वो आपके साथ हुई है, आपके किसी फ्रेंड के साथ हुई है, आपका कोई एक्सपीरियंस है, आपकी कोई ऑब्जर्वेशन है. ट्राई टू शेयर विद योर रिसर्च गाइड, ट्राई टू शेयर विद योर पीयर, ट्राई टू शेयर विद योर टीचर्स. दे कैन गाइड यू. और यू कैन डू अ सेल्फ एक्सरसाइज जहां पे आप उसको आइडेंटिफाई करके, उसको फिल्टर करके किसी वेरिएबल्स के फॉर्म में ले आ पाओ. पहला सोर्स. सेकंड, लाइब्रेरी में पहला सेल्फ क्यों लिया है? द रीजन बीइंग, जितनी देर तक वो रिसर्च प्रॉब्लम आपके यहाँ पे नहीं लगी होगी, अगर वो आपके दिल से वो काम नहीं कर रहे हो, देन यू विल बी डूइंग अ फॉर्मेलिटी. अगर वो आपके दिल से अटैच्ड प्रॉब्लम है, अगर आप उसमें इन्वॉल्व होकर काम करना चाहते हो, यू विल अल्टीमेटली प्रोड्यूस अ गुड पीस ऑफ रिसर्च. And that piece of research will not be a decorative piece in Almira. बहुत से लोगों ने पीएचडी कर रखी है, बहुत से लोगों ने एमएड कर रखी है, बहुत से लोगों ने काम कर रखा है, लेकिन वो कहाँ पे यूज हुआ किसी को कुछ नहीं पता. वो डिसर्टेशन कंप्लीट हुआ, वो एक्शन रिसर्च कंप्लीट हुई, एक अलमीरा में रख दी, उसको 15-20 साल के बाद आप खोलते हो, जमी हुई धूल मिट्टी उठा देते हो, आपको नहीं पता मैंने किस टॉपिक पे काम किया था. सो ऐसी रिसर्च करने का कोई पर्पस नहीं है. देन कम्स लाइब्रेरी. लाइब्रेरी इज अ वेरी गुड सोर्स टू फाइंड डिफरेंट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स. आप बुक्स रीड कीजिए, बुक्स में डिफरेंट थ्योरीज रीड करिए. वो थ्योरीज के बेस्ड पे अगर आप कोई टीचिंग लर्निंग के फील्ड में रिसर्च करनी चाहते हैं, ऐसा कोई आइडिया आपके माइंड में आता है, बुक में से कोई थ्योरेटिकल कंसेप्ट माइंड में आता है, लाइब्रेरी की सेमिनार रिपोर्ट्स हैं, लाइब्रेरी में रिसर्च रिपोर्ट्स हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ जर्नल्स हैं. बहुत से जर्नल्स में रिसर्च पेपर्स पब्लिश होते हैं. जैसे हमारे कॉलेज का रिसर्च जर्नल है जीएचजी जर्नल ऑफ सिक्स थॉट. अगर आप गूगल पे भी सर्च करोगे, यू विल फाइंड डिफरेंट काइंड ऑफ रिसर्च पेपर. यू कैन गेट एन आइडिया व्हाट आर द करंट इश्यूज. आप एजू ट्रैक है, यूनिवर्सिटी न्यूज है, इकोनॉमिक पॉलिटिकल वीकली है. देयर आर नंबर ऑफ रिसर्च जर्नल इन द प्रिंट मीडिया एज वेल एज इन द ऑनलाइन मीडिया. You can search for in different journals different kind of topics. जो मैंने पहले सेल्फ बोला है, कुछ प्रॉब्लम्स आपकी कोरिलेट करने लग जाएंगी कि हाँ मेरे साथ भी ये हुआ था, मेरे माइंड में भी ये क्वेश्चन आता है, लेकिन इस पर्सन ने इस क्वेश्चन को बड़े बेटर वे से प्रेजेंट किया है. सो आपका वो फिल्ट्रेशन प्रोसेस इजी हो जाएगा. बहुत से अब्स्ट्रैक्ट होते हैं लाइब्रेरी में पड़े. अब्स्ट्रैक्ट होता है किसी भी रिसर्च का एक छोटा सा पार्ट, जिससे हम उस रिसर्च का आइडिया ले सकते हैं. अगर हमें कोई अब्स्ट्रैक्ट अच्छा लगे तो हम उसकी पूरी रिसर्च खोलकर देख सकते हैं. यू कैन ऑल्सो फाइंड अ नंबर ऑफ अब्स्ट्रैक्ट ऑन गूगल ऑल्सो. देन डिफरेंट डिसर्टेशन इन ऑनलाइन एंड ऑफलाइन मोड, डिफरेंट सर्वे, गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट, आपका आरटी का डॉक्यूमेंट है, दैट कैन बी अ रिसर्च प्रॉब्लम.
उसकी कैसे इम्प्लीमेंटेशन हुई है, कैसे नहीं हुई है. NEP 2020 can be a source to find different kind of research problem. So these are the different sources in your library. Then coming to the people, the लोग जो आपके इर्द गिर्द घूमते हैं, जो आपके ब्रदर सिस्टर फैमिली मेंबर्स, आपके फ्रेंड्स, हस्बैंड वाइफ, बच्चे, ये सभी आपके लिए एक सोर्स ऑफ प्रॉब्लम हो सकते हैं. इनको सीरियस मोड पे मत ले लेना कि आप इन लोगों के साथ रह रहे हो तो वो आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं. नो, जब आप उन लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हो, जब आप उन लोगों के साथ डील करते हो, जब आप उन लोगों के साथ रहते हो, तो आपको बहुत सी ऑब्जर्वेशंस होती हैं, बहुत से एक्सपीरियंसेस होते हैं. मान लीजिए आपकी कोई फ्रेंड है जिसको उसका हस्बैंड टॉर्चर कर रहा है, किसी भी वजह से, किसी भी पॉइंट से उसको इंसल्ट कर रहा है. शी इज योर फ्रेंड. तो लेकिन वो आपके लिए एक एक्सपीरियंस है, आप उसकी ऑब्जर्वेशन ले रहे हो. देन यू कैन प्लान अ स्टडी के कौन से रीजंस हैं जहाँ उन जो लड़कियों को ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं, उनकी मेंटल सेटअप क्या है, उन पे क्या बैड इफेक्ट पड़ते हैं. यू कैन गो टू दिस डायरेक्शन टू फॉर्म योर रिसर्च प्रॉब्लम. सो दिस इज वन एग्जांपल. आपके बच्चे हैं, आपके बच्चे आप देखते हो कि थ्योरेटिकली कुछ और लिखा हुआ है लेकिन प्रैक्टिकली बच्चे कुछ और कर रहे हैं. योर स्टूडेंट्स कैन बी अ रिसर्च प्रॉब्लम. आप उनकी एज वाइज कैरेक्टरिस्टिक्स को नोट करते जाएं, उन एज वाइज कैरेक्टरिस्टिक्स को कंपैरिजन करते जाएं. अगर आप अपने बच्चों पे करना चाहते हो दैट विल बिकम लॉन्गिट्यूडनल स्टडी. प्याजे ने क्या किया था, प्याजे ने अपने बच्चों पे स्टडी की थी, उनकी डिफरेंट एजेस पे उनकी ऑब्जर्वेशन करता रहा, उसकी रिकॉर्डिंग करता रहा और उसी के बेसिस पे उसने अपनी थ्योरी दी, जिसको आजकल यूजीसी नेट में, सी टेट में, पी टेट में बड़ा पूछा जाता है, पियाजे's थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट. दैट थ्योरी इज बेसिकली अ लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च कंडक्टेड बाय पियाजे. सो योर किड्स, your brother, sister, your friends, your teacher, your colleagues, your peers, your friend who is moving with you in bus to your college can give you an idea, can become a source of a research problem. So whenever you are working on a research problem, always open your eyes and ears or even your third eye so that you can note down each and everything happening around you, which can be a source of your research problem, which can be a source of your review of literature, which can give you an idea in your research process. So these are the different sources of research problem. Any problem, यहाँ तक आपको कोई समस्या हो, कोई रुकावट हो, कोई प्रॉब्लम महसूस होती हो, कैन वी मूव फर्दर? बेटा यहां तक जितना हमने कवर किया है, यहां तक Yes, आपको sir. कोई We भी can प्रॉब्लम हो, move. यू कैन डिस्कस. ओके फाइन, यू कैन मूव अहेड. कोई स्पीड बोलने की तेज करनी है, हिंदी पंजाबी इंग्लिश मिक्स करना है, आई थिंक इट्स ओके, इट्स अ मल्टीलिंगुअल. आई नो माय हिंदी इज नॉट वेरी गुड बट आई एम ट्राइंग माय बेस्ट टू स्पीक इन हिंदी. ओके, so Yes, can we proceed with the same Okay, multilingual? sir. Okay, fine. Yes, sir. Thank you very much. So now coming to a practical slide. अब आपने अगर बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ली है, अगर आपने सोर्सेज ऑफ जो प्रॉब्लम है उनको अच्छी तरह से रीड आउट कर लिया है, अगर आप अपनी प्रॉब्लम को एक स्टेटमेंट के फॉर्म में बनाने के प्रोसेस तक पहुंच जाओ, तो आपको ये कुछ एग्जांपल्स दी गई हैं. अगर आपने मान लीजिए स्ट्रेस पे स्टडी करना है, अगर आप अपना टाइटल बनाओ अ स्टडी ऑफ स्ट्रेस, दैट इज अ टू ब्रॉड. आपको नहीं पता स्टडी ऑफ स्ट्रेस स्टूडेंट्स की करनी है, टीचर्स की करनी है, पेरेंट्स की करनी है, हेड्स की करनी है, बच्चों के पेरेंट्स की करनी है. There is no clear indication. A study of stress is a too broad title. अगर आप इसको थोड़ा सा और आगे लेके जाओगे, study of stress of teachers, is it right? A study of stress of teachers, is it right? Any idea in chat box, please? Quickly. We have limited time and many things to cover.
No. Jaskaran said no. Any other student? कौन No, जिसके के साथ जाएगा, कौन उसके अगेंस्ट जाएगा? A study of stress of teachers can be a problem or not? It is too broad domain. No, Yes, sir. Palak is saying it is too broad, still too broad, because study of stress of teacher, yes, school or colleges, it is not a specific title. Then coming to the next level, a study of stress of teachers of colleges. Now, colleges of England, colleges of Italy, colleges of America, which country? Nothing is clear. Colleges of Bihar, colleges of Punjab, nothing is clear. So we will be moving one step further. A study of stress of teachers of colleges of India. इंडिया तो बहुत बड़ा है, क्या आप इंडिया पे सारे इंडिया पे कवर कर सकते हो? आई थिंक फॉर अ सिंपल रिसर्च टॉपिक इट कैन नॉट बी अ टॉपिक, बट yes, it is a problem. It can be a problem at a large level, but still you must come to more narrow title. Then comes a study of stress of teachers of colleges of Punjab. That can be a study at PhD level. That can be a study at a research project level. कि आप पूरे पंजाब में से डेटा लेना चाहते हो, उसमें डिफरेंट सैम्पलिंग टेक्निक यूज करना चाहते हो, दैट कैन बी अ प्रॉब्लम. देन अ स्टडी ऑफ स्ट्रेस ऑफ टीचर्स ऑफ कॉलेजेस ऑफ लुधियाना, उसको और नैरो डाउन कर लिया कि आप एमएड लेवल पे, आप स्कूल लेवल पे पूरे पंजाब की स्टडी नहीं करना चाहते, इतना टाइम, एनर्जी, पैसा आपके पास नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, तो आपने उसको और लेवल डाउन कर लिया. अ स्टडी ऑफ स्ट्रेस ऑफ टीचर्स ऑफ कॉलेजेस ऑफ लुधियाना. नाउ लुधियाना, पंजाब, इंडिया आर रिसर्चेबल प्रॉब्लम्स. अगर आप इन पे काम करना चाहो, यू कैन डू इट. इनमें बहुत सी चीजें डिफाइन हो जाती हैं, लेकिन अगर आप इसको और अच्छा बनाना चाहते हो तो जैसे आपका जितनी बड़ी रिसर्च है उसके अकॉर्डिंगली आप इसको स्पेसिफाई करें. अगर आप इसको और नीचे जाएं, अ स्टडी ऑफ स्ट्रेस ऑफ टीचर ऑफ कॉलेजेस ऑफ GHG खालसा कॉलेज ऑफ एजुकेशन गुरसो सुधार इन लुधियाना. This is also not an appropriate title because it is a too specific. अब आपके लिए एक बात यहां से लर्न करने वाली क्या है? द रिसर्च प्रॉब्लम शुड नॉट बी टू ब्रॉड और व्हाट इज योर आंसर इन योर चैट बॉक्स? द रिसर्च प्रॉब्लम शुड नॉट बी टू ब्रॉड, ईदर टू ब्रॉड और टू स्पेसिफिक. ना तो रिसर्च की प्रॉब्लम बहुत बड़ी होनी चाहिए, बहुत ब्रॉड होनी चाहिए, बहुत खुली होनी चाहिए, ना ही रिसर्च की प्रॉब्लम बिल्कुल नैरो डाउन की हो जिसमें आप एक एक डेमोग्राफिक वेरिएबल की भी बात कर रहे हो. बोथ टाइप ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम्स आर नॉट कंसिडर्ड एज अ गुड रिसर्च प्रॉब्लम. If research is too specific, then we will not be able to reach to the proper conclusion. Wonderful. Palak has given a wonderful answer कि अगर आप अपनी रिसर्च को बहुत स्पेसिफिक कर दोगे तो आपकी जो उसके इन्फ्रेंसेस होंगे, जो आप उसके कंक्लूजन निकालने जाओगे, यू वुड नॉट बी एबल टू इन्फर योर रिजल्ट टू अ पॉपुलेशन. यू हैव टू डिसाइड, यू हैव टू फिक्स पॉपुलेशन जिस पे आप इजिली रीच कर सकते हो, जिसमें से आप एक सैंपल ले सकते हो, उस सैंपल पे अपना वर्क कर सकते हो और उस सैंपल के रिजल्ट के बेसिस पे आप इन्फर कर सकते हो. सो ना ही बहुत ब्रॉड, क्योंकि अगर ब्रॉड करोगे आपका कंट्रोल नहीं रहेगा. अगर आप बहुत नैरो करोगे, आप उसकी जो एक्सटर्नल वैलिडिटी है, जो उसके कंक्लूजन की इम्प्लीकेशन है, जो उसके इन्फ्रेंसेस है, उसमें आपको अपने आप को बहुत ज्यादा नैरो डाउन कर लोगे. सो दिस इज अ सिंपल एग्जांपल दैट yes, Daljit is also saying we can't generalize a result. If the problem will be very specific, then the result can also be implicable only on that particular population. If the population is very limited, so we cannot generalize the result. Then comes, I think this is clear. Our research problem should always be justifiable. It should not be too broad or too specific. अब
जब भी आपने रिसर्च प्रॉब्लम लेनी है तो कैसे लेनी है, और जो आपने रिसर्च प्रॉब्लम अभी सिलेक्ट कर रखी है, जिनकी अप्रूव हो चुकी है, जहाँ जो बीएड के बच्चों ने एक्शन सर्च करनी है, जहाँ किसी भी रिसर्च पे इन फ्यूचर काम करना है, तो आपको एक बैलेंस बनाना है. अचीविंग बैलेंस इन द रिसर्च टाइटल, बैलेंस बिटवीन क्लैरिटी एंड डिस्क्रिप्शन. जैसे हमने लास्ट स्लाइड पे फर्स्ट एग्जांपल ली थी, उसमें कुछ भी क्लियर नहीं था, लेकिन जब हमने बिल्कुल लास्ट वाली एग्जांपल ली उसमें बहुत डिस्क्रिप्शन लिखी हुई थी. सो वी हैव टू सेट अ बैलेंस बिटवीन क्लैरिटी एंड डिस्क्रिप्शन, क्योंकि बहुत सी चीजें हम रिसर्च टाइटल में नहीं लिखते. मान लीजिए आपने अपनी स्टडी को डीलिमिट करना हो सिर्फ लुधियाना के सुधार ब्लॉक तक, तो आप रिसर्च टाइटल में सुधार ब्लॉक नहीं लिखोगे. यू कैन राइट स्टूडेंट्स ऑफ लुधियाना, but when you will be coming in your research proposal or research report, you can use the word delimitation. Delimitation means setting the boundaries of your research. At that time you can set that the data will be collected from Sudhar block of Ludhiana. Now you have delimited your study from Ludhiana to block Sudhar, but it is not showing in a research title. सो आपको उसमें बहुत डिस्क्रिप्शन में नहीं जाना है, लेकिन क्लैरिटी हो जाए, अननेसेसरी डिस्क्रिप्शन पे मूव करने से अवॉइड करना है. देन नॉन अपीयरेंस ऑफ सर्टन थिंग्स. सर्टन थिंग्स क्या है, बहुत ज्यादा डिस्क्रिप्शन ना हो, रिपीटेड वर्ड्स ना हो, उनको आपने अवॉइड करना है. अवॉइड टू मच डिटेल ऑफ द ज्योग्राफिकल एरिया, जैसे हमने अभी बात की है सुधार ब्लॉक के विलेज सुधार, दीज आर द डेमोग्राफिक ज्योग्राफिकल एरियाज, सॉरी डेमोग्राफिक बोला मैंने, ज्योग्राफिकल एरियाज, इनको आप अवॉइड कर सकते हैं. अवॉइड वर्ब टू, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. हो सकता है हम लोगों की भी कोई सेंड की गई रिसर्च प्रॉब्लम पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ ने भी अप्रूव कर दी हो, वहां की कमेटी ने, लेकिन ऑलवेज अवॉइड द वर्ड टू. कभी भी किसी रिसर्च टाइटल के पहले टू नहीं यूज करना, TO2. जब आप किसी रिसर्च टाइटल के आगे टू लगा देते हो, इट बिकम्स ऑब्जेक्टिव. जब आप रिसर्च में ऑब्जेक्टिव लिखते हो, हम लिखते हैं टू नो द स्टेटस, टू नो द स्ट्रेस लेवल ऑफ मदर्स, टू नो द स्ट्रेस लेवल ऑफ फादर्स, पेरेंट्स, टीचर्स, स्टूडेंट्स. तो आप जब भी कोई ऑब्जेक्टिव लिखते हो, द ऑब्जेक्टिव स्टार्ट्स विद द वर्ड टू. अगर आपने कभी रिसर्च टाइटल के पहले टू लगा दिया, इट मींस इट हैज टेकन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्टिव, नॉट अ रिसर्च टाइटल. ऐसे ही स्टडिंग, ING, this word is not appropriate for research title. It is also considered as a wrong word. कभी भी रिसर्च टाइटल टू से स्टार्ट नहीं होना चाहिए. कभी भी रिसर्च टाइटल में स्टडिंग, डूइंग, ING से जो बातें हैं उनको अवॉइड करना चाहिए. दीज आर द बेसिक रूल्स ऑफ राइटिंग अ रिसर्च टाइटल. नो रिपीटेड वर्ड्स. एक ही वर्ड को दो बार रिपीट करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती रिसर्च में, रिसर्च टाइटल में. नो फुल स्टॉप एट द एंड. अगर आपने रिसर्च प्रॉब्लम लिखनी है, never use a full stop in the end, because it will convert your research title into a sentence. So always remember that your statement should not have the full stop at the end. Then it must have mention of variables. अब ये तो हमने बता दिया कि क्या चीजें नहीं करनी है. अब अगली बात आती है क्या करना है, मीन्स कौन सी चीजें ऐड करनी है. आपकी रिसर्च प्रॉब्लम में जो आप मेन वेरिएबल्स पे काम करना चाहते हैं, मान लीजिए एक वेरिएबल है स्ट्रेस, तो स्ट्रेस शुड बी इन द टाइटल. अगर आप कोई दूसरा डेमोग्राफिक वेरिएबल लेना चाहते हो, इन बातों में थोड़ा सा ट्रेड ऑफ होता है. ट्रेड ऑफ मीन्स कहीं पे रिसर्च टाइटल बहुत छोटा है, बहुत लिमिटेड है, तो हम डेमोग्राफिक वेरिएबल को ऐड कर सकते हैं. अगर रिसर्च टाइटल पहले से उसमें वेरिएबल ज्यादा है, उसमें से हम डेमोग्राफिक वेरिएबल को ओमिट कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं. वी कैन ऐड डेमोग्राफिक वेरिएबल इन डिलिमिटेशंस. सो इसमें आपने ध्यान रखना है कि जो आपकी मेन वेरिएबल्स हैं
those variable must be included in a research title. मैंने ऐसे भी रिसर्च प्रॉब्लम देखी हैं जहां पे मेजर वर्क इज ऑन डिफरेंट वेरिएबल, बट वो वेरिएबल रिसर्च टाइटल का पार्ट ही नहीं बना। मान लीजिए 3 वेरिएबल लिए हैं, 2 वेरिएबल्स आर पार्ट ऑफ रिसर्च, आगे एक कैटेगोरिकल वेरिएबल ले लिया है, उस वेरिएबल का कहीं पे भी मेंशन नहीं है, लेकिन 80% ऑफ द 70% ऑफ द पार्ट ऑफ द रिसर्च इज ऑन दैट वेरिएबल। सो वी हैव टू कीप इन माइंड जो हमारे मेन वेरिएबल्स हैं, दैट शुड बिकम अ पार्ट ऑफ आवर रिसर्च प्रॉब्लम। इट शुड गिव इंडिकेशन ऑफ रिसर्च मेथड। जैसे हमने पहली स्लाइड में बात की थी, एक अच्छी रिसर्च प्रॉब्लम आपको सारा शेड्यूल बता देती है कि आप कौन से किस टाइप के हाइपोथेसिस की तरफ बढ़ रहे हो, कैसी आप एक्सप्लेनेटरी रिसर्च करने जा रहे हो, एक्सपेरिमेंटल करने जा रहे हो, कोरिलेशन करने जा रहे हो, वो आपकी रिसर्च प्रॉब्लम की स्टेटमेंट से आइडिया लग जाता है। 100% नहीं करेक्ट होता, लेकिन एक आइडिया जरूर हो जाता है कि दिस इज एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। अगर आपकी रिसर्च का टाइटल स्टार्ट होता है इफेक्टिवनेस ऑफ एक्सपीरियंशियल लर्निंग, तो आपका इससे क्लियर हो गया कि यू आर मूविंग टुवर्ड एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। अगर आप बात करो रिलेशनशिप ऑफ स्ट्रेस एंड अचीवमेंट, इट मीन्स यू आर मूविंग टुवर्ड द कोरिलेशनल स्टडी। सो जो आपका टाइटल होगा that must indicate the research method. So this is a slide to do evaluation of your research problem. जिन लोगों ने select कर ली है वो भी evaluation कर सकते हैं, जिन्होंने select करनी है एक research title बनाइए, उस research title को इन steps पे, इन point के basis पे आप evaluate करके देखिए क्या आपकी research problem इन 5 steps पे, इनको शॉर्टकट FISO, FISSO, फिजिबिलिटी, इंटरेस्टिंग, सिग्निफिकेंस, सॉल्वेबिलिटी, ओरिजिनल, क्या आपकी रिसर्च प्रॉब्लम इस क्राइटेरिया को पास करती है या नहीं करती है। यू कैन डू योर सेल्फ एनालिसिस, यू कैन डू योर ओन ऑब्जर्वेशन टू डिसाइड whether my research problem is well stated or not. So it is a simple exercise you can do on the basis of these points. Feasibility सबसे पहली बात है कि जो आप रिसर्च टॉपिक लेकर काम करना चाहते हो, क्या वो विद इन फ्रेम टाइम पूरा हो सकता है, उसकी कॉस्ट कितनी है, क्या वो कॉस्ट वेरिएबल है, इकोनॉमिकली पॉसिबल है, क्या उसके लिए रिक्वायर्ड रिसोर्सेज जहां से डाटा कलेक्ट करना है वो पर्सन मिल सकते हैं, उसके लिए जो आपने टूल यूज करना है क्या वो टेस्ट, क्या वो टूल अवेलेबल है, अगर अवेलेबल नहीं है क्या वो बन सकते हैं, बनाने में कितना टाइम लगेगा। यू हैव टू डिसाइड ईच एंड एवरीथिंग व्हेन यू आर कंसिडरिंग फिजिबिलिटी ऑफ योर रिसर्च। योर रिसर्च कॉम्पिटेंस, आपने एक टॉपिक लिया कि मैं ई लर्निंग के मॉड्यूल बनाकर उनके बच्चों के ऊपर इफेक्टिवनेस देखना चाहती हूँ, क्या आप खुद ई लर्निंग के मॉड्यूल बना सकते हो। आपकी कॉम्पिटेंस एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में है, कोरिलेशन में है, जहां आपकी हिस्टोरिकल रिसर्च में है। यू हैव टू आइडेंटिफाई योर कैरेक्टरिस्टिक्स एज अ रिसर्चर, देन इट मस्ट बी अ प्रिसाइज। सेकंड पॉइंट, इंटरेस्टिंग, जितनी देर तक वो रिसर्च प्रॉब्लम आपको और आपके गाइड को इंटरेस्टिंग नहीं है, आप दोनों की उसमें ट्यूनिंग होनी चाहिए। और गाइड का जो फर्ज बनता है, गाइड का जो दायित्व बनता है कि वो अपने बच्चे को इंटरेस्ट को अपने इंटरेस्ट से आगे रखे। जब भी वो कोई प्रॉब्लम लेकर आता है, हमने उस बच्चे के पॉइंट ऑफ डिस्कशन को आगे बढ़ाना है, ना कि अपना थॉट प्रोसेस उस पर थोपना है। तो क्या है कि अगर बच्चा आपके पास आता है, इस एरिया में रिसर्च करना चाहता है, आपकी अगर उस एरिया में कॉम्पिटेंस मैच करती है, आप उसको उस एरिया में गाइड कीजिए। अगर आपको कोई नया सीखने के लिए मिलता है तो रिसर्चर कैन आल्सो लर्न समथिंग न्यू, बट इट शुड बी ऑलवेज एड समथिंग न्यू, इट शुड बी रेलिवेंट, it should enhance your skills, it must have some social value, so the topic should be interesting. आपने एक प्रॉब्लम के साथ कम से कम कुछ महीनों के लिए, कुछ सालों के लिए रहना है आपने साथ में, चाहे आप बीएड में छोटे 2-3 महीने के लिए रिसर्च कर रहे हो, चाहे एमएड में 1 साल के लिए, चाहे पीएचडी में 5 साल के लिए,
इट मीन्स यू हैव टू लिव विद दैट प्रॉब्लम। क्या आप एक अनइंटरेस्टिंग पर्सन के साथ अपनी लाइफ जी सकते हो? क्या आप एक अनइंटरेस्टिंग पर्सन के साथ अपनी क्लास में बैठ सकते हो? क्या आप एक अनइंटरेस्टिंग पर्सन के साथ लगातार 10 दिन ट्रैवल कर सकते हो? योर आंसर विल बी नो। सो डियर स्टूडेंट्स, जब भी आप रिसर्च प्रॉब्लम लेते हो, यू हैव टू लिव विद दैट रिसर्च प्रॉब्लम, सो इट मस्ट बी इंटरेस्टिंग, देन it should have some significance in your life, significance for the educational purpose, उसका कोई ना कोई implication होना चाहिए, वो नॉलेज में कोई ऐड करती हो, वो कोई रिसर्च का एम पूरा करती हो, वो कोई ना कोई गैप्स फिल करती हो। देन सॉल्वेबिलिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे फिजिबिलिटी की बात है, उससे रिलेटेड है सॉल्वेबिलिटी। क्या आप रिसर्च को मैनेज कर सकते हो? क्या उसके रिजल्ट वेरीफिएबल होंगे? क्या उनके रिजल्ट को रेप्लिकेट कर सकते हो? क्या उसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस हैं? क्या उसमें कोई एथिकल इशू तो नहीं है? मान लीजिए आप रिसर्च ले लें किसी ऐसे टॉपिक पे जहां पे आपको डाटा कलेक्ट करने की इजाजत ही ना मिले, आपको परमिशन ही ना मिले। बहुत से टॉपिक होते हैं जो एथिकल इशू पे आपको उसका डाटा मिलना नामुमकिन होता है। समटाइम गवर्नमेंट डजंट अलाउ टू डू रिसर्च ऑन द पर्सनल लाइफ ऑफ एनीवन। सो एथिकल इशू क्या है? जैसे जानवरों पे एक्सपेरिमेंट करने हैं, वो बहुत टाइम अलाउ नहीं होते। बहुत से एथिकल इश्यूज होते हैं। देन योर रिसर्च प्रॉब्लम मस्ट प्रोड्यूस समथिंग ओरिजिनल, प्रोडक्ट ऑफ एक्सपीरियंस एंड क्रिएटिविटी होना चाहिए, समथिंग इनोवेटिव, समथिंग क्रिएटिव, समथिंग एम्पिरिकल। सो दीज आर द फ्यू पॉइंट्स टू इवेल्युएट योर रिसर्च प्रॉब्लम। पहले मैंने एक चार्ट बनाने की कोशिश की है, different sources of research problem. This is a criteria to evaluate your research problem. You will find different point in different books. I have collected some of the points from Dr. Sharma book, some are from Kothari book, some are from the John W. West. So it is a combination of 6-7 books. So अब next बात हम next 5 minutes और लेंगे. I think your schedule is planned up to 3:30. सो जस्ट 5 to 7 मिनट। अब जब आपने अपने रिसर्च प्रॉब्लम में को डिफाइन कर लिया, रिसर्च प्रॉब्लम को एवेल्युएट कर लिया, तो आपने रिसर्च प्रपोजल में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखनी है, ऑपरेशनल डेफिनेशन। अब बहुत से बच्चों को इस चीज में पता नहीं होता कि व्हाट इज ऑपरेशनल डेफिनेशन। अब ऑपरेशनल डेफिनेशन क्या है कि हो सकता है एक वेरिएबल को एक राइटर ने एक साइकोलॉजिकल थ्योरी में और किसी वे से एक्सप्लेन किया। जैसे इंटेलिजेंस है, इंटेलिजेंस को बिने ने किसी और वे से एक्सप्लेन किया, स्टर्न ने किसी और वे से एक्सप्लेन किया, गिलफर्ड ने किसी और वे से एक्सप्लेन किया, जिन्होंने मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी दी उन्होंने किसी और वे से एक्सप्लेन किया। ऐसे ही डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट ने इंटेलिजेंस को डिफरेंट वे से एक्सप्लेन किया है। अगर आपने अपना वेरिएबल इंटेलिजेंस लेना है तो आप कैसे मानोगे कि आपने कौन से साइकोलॉजिस्ट की इंटेलिजेंस की डेफिनेशन मानी है? आपका जो रिसर्च को इवेल्युएट करने वाला पर्सन है वो कैसे असेस करेगा कि आपकी इंटेलिजेंस की डेफिनेशन की? ऐसे ही गिफ्टेडनेस, अब किसी के लिए गिफ्टेडनेस हो सकता है 90 to 100 स्कोर, किसी के लिए हो सकता है 80 to 100 स्कोर। इसीलिए हमें इन चीजों को किसी ना किसी थ्योरी के बेसिस पे अपनी रिसर्च के अकॉर्डिंगली डिफाइन करना होता है। वी कॉल इट ऑपरेशनल डेफिनेशन। अब ऑपरेशनल डेफिनेशन में क्या ध्यान रखना है? आपकी रिसर्च प्रॉब्लम के जो मेन वेरिएबल्स हैं, यू हैव टू डिफाइन द मेन वेरिएबल्स इन ऑपरेशनल टर्म्स। जब भी आप ऑपरेशनल टर्म में डिफाइन करो, सबसे पहली बात अपनी मर्जी नहीं करनी है। It is not your will to define a variable as you want. You must see the background of that variable, the theory behind that variable. Then you can specify how the term will be measured or observed in your research. So always keep in mind the exact operational definition of your research proposal. जब भी आप रिसर्च प्रपोजल बनाओ, ऑलवेज एड योर रिसर्च वेरिएबल्स इन एन ऑपरेशनल टर्म्स। एक ये 3 चीजें लास्ट है आपके साथ डिस्कस करने वाली, लिमिटेशन, डिलिमिटेशन एंड अजम्पशंस। बहुत बार आपको इन पे यूजीसी नेट में
आपके इवन सीटेट पीटेट में, आपके रिसर्च डिसर्टेशन के वाइवा में क्वेश्चन आता है, एंड स्टूडेंट आर नॉट एबल टू टेल द आंसर. व्हाट इज ऑपरेशनल डेफिनेशन, व्हाट आर द क्राइटेरिया ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम, मैंने रिसर्च प्रॉब्लम कैसे चूज की थी, उसके वेरिएबल्स क्या है. स्टूडेंट आर नॉट एबल टू गिव आंसर ऑफ दीज सिंपल क्वेश्चंस. बेटा लिमिटेशन एंड डीलिमिटेशन आर टू डिफरेंट थिंग्स. लिमिटेशन वो चीजें हैं जिनको रिसर्चर कंट्रोल नहीं कर सकता. दीज आर बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ रिसर्चर. मान लीजिए आप Sir, you are muted. I Sir, think we can't- audio is okay. Yes, yes, sir. Now we Now, can. Okay, fine, fine. कितनी देर से प्रॉब्लम आई है बेटा अभी? sir, just 1 second, 2 seconds. ओके फाइन फाइन. सो लिमिटेशन क्या है, वो चीजें जिनको रिसर्चर कंट्रोल नहीं कर सकता. जैसे आपकी स्टडी में जो बाय नेचर आपने डाटा कलेक्ट किया वो मेल जेंडर से, मेल से कलेक्ट किया. अब आपकी लिमिटेशन क्या है कि आपके रिजल्ट फीमेल पे अप्लाई नहीं हो सकते. दैट इज योर लिमिटेशन. आप उसको चेंज नहीं कर सकते. लेकिन अगर आप डीलिमिटेशन की बात करते हो, वो चीजें जो आपके कंट्रोल में हैं, आप अपने रिसर्च प्रपोजल को बड़ा करना चाहते हो तो डीलिमिटेशन कम कर लोगे. अगर आप उसको स्पेसिफिक करना चाहते हो, एक मेजरेबल एरिया में करना चाहते हो, जितना आप अच्छी तरह से मैनेज कर सकते हो, जितने रिस्ट्रिक्शन आप उस पर लगाते जाते हो खुद, वो क्या है आपकी डीलिमिटेशन. इट इज डीलिंग विद द बाउंड्रीज जो आपने खुद अपने लिए डिफाइन की है. दोज आर कॉल्ड डीलिमिटेशन. आपने सुधार ब्लॉक से ही डाटा कलेक्ट किया. दैट इज डीलिमिटेशन ऑफ योर रिसर्च, नॉट अ लिमिटेशन. सो लिमिटेशन वो चीजें हैं जिनको रिसर्चर कंट्रोल नहीं कर सकता, जिनके कारण उसकी इम्प्लीकेशन पे इफेक्ट आता है. और डीलिमिटेशन वो चीजें हैं जिनको रिसर्चर कंट्रोल कर सकता है. ऐसे ही एक टर्म है assumptions. Assumptions are always accepted as true or at least reasonable or believable by researcher and peers who will read your dissertation or thesis or a research project. वो चीजें जिनको हम मानकर चलते हैं. जैसे आप कोई थ्योरी की बात करो, जहाँ जैसे इकोनॉमिक्स में आप करते हो कि ऑल कंज्यूमर्स आर बिहेविंग इन अ नॉर्मल मैनर. एक सिंपल बात है कि प्राइस और डिमांड में जो बैलेंस बनता है, जो लॉ बनता है, लॉ ऑफ डिमांड. लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीजेस, डिमांड ऑफ कमोडिटी इंक्रीजेस व्हेन द प्राइस ऑफ कमोडिटी डिक्रीजेस एंड वाइस वर्सा. जब किसी चीज की प्राइस कम हो जाती है तो उसकी डिमांड बढ़ जाती है, और जब उसकी प्राइस ज्यादा हो जाती है तो उसकी डिमांड कम हो जाती है. मान लीजिए एक लॉ ऑफ डिमांड बना हुआ है. अब ये कब अप्लाई होगा? जब इसकी अजम्पशंस फुलफिल होंगी. अजम्पशंस क्या है कि सभी कंज्यूमर कॉन्शियस होकर एक इक्वल बिहेवियर करते हैं, कोई जमाखोरी नहीं करता है, कोई स्टॉकिंग नहीं करता है. इट मीन्स जब आप इन चीजों पे फोकस करते हो, आप अज्यूम करके चलते हो कि कंज्यूमर नॉर्मली बिहेव करेगा. दीज आर द assumption जिनको आप अज्यूम करते हो, जो आप ट्रू मान के चलते हो कि ऐसा होगा. दोज आर द assumptions. सो ऐसे ही आप रिसर्च में कुछ assumptions, कुछ अज्यूम करके चलते हो कि ऑल द स्टूडेंट विल पार्टिसिपेट इन एक्सपेरिमेंटल स्टडी. अब उसमें 2, 4, 5 हो सकता है पार्टिसिपेट ना करें, लेकिन अगर मेजॉरिटी ने किया, इट मीन्स योर assumption इज राइट. तो 3 चीजें हैं, लिमिटेशन, डीलिमिटेशन एंड assumption. 3 टर्म्स हैव डिफरेंट मीनिंग्स. सो जब भी आप इनको रिप्लाई करो अपना कहीं पे भी, तो आपको इनका बेसिक, इनकी एग्जांपल्स पता होनी चाहिए. सो डिफरेंट काइंड ऑफ वेरिएबल्स आपके होंगे जो आपकी रिसर्च प्रॉब्लम आपको गाइड करेगी. सम कैन बी कॉन्टिन्यूस, सम कैन बी डिस्क्रीट वेरिएबल्स. ऐसे ही अगर आप एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में जाओगे, सम वेरिएबल्स आर कॉल्ड डिपेंडेंट वेरिएबल, सम आर कॉल्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल, सम आर कॉल्ड इंटरवीनिंग वेरिएबल एंड सम आर कॉल्ड कॉन्कमिटेंट वेरिएबल्स. अगर आप क्वांटिटेटिव डाटा में जाओगे, अगर आप कंपेयर करोगे किसी चीज को, देन यू विल
कैलकुलेट मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। अगर कंपेयर करना है, अगर आपने रिलेशनशिप देखना है, यू विल गो फॉर एसोसिएशन एंड कोरिलेशन। These are the few things which are directly or indirectly related with your research problem. So now you can take 2 to 5 minutes for any kind of question regarding the whole discussion today on research problem and research proposal. जब भी आपने अपना रिसर्च प्रपोजल तैयार करना है, जैसे हमने एक स्लाइड पे दिखाया था, तो आपकी प्रॉब्लम क्या है, आपके ऑब्जेक्टिव क्या है, हाइपोथेसिस क्या है, सैम्पलिंग क्या है, आपका रिसर्च का डिजाइन क्या है, यू विल गो थ्रू दीज स्टेप्स। जब इन 7 दिनों में आई थिंक आपके लिए 45 आवर्स प्लान किए हैं। अगर आप इन 45 आवर्स को प्रॉपरली अटेंड कर लेते हो, कवर कर लेते हो, आई थिंक यू कैन गेट अ वेरी गुड आइडिया to conduct research at any level, at B.Ed level, at M.Ed level, at PhD level, for any research project also. Different resource persons will be putting light on different topics. जैसे आज हमने research problem पे डिटेल पे बात की है in context of research proposal, ऐसे ही इन बातों को आगे कंटिन्यू रखा जाएगा। So any question from your side, please, just 2 to 5 minutes. अगर आपके पास टाइम है, no issue. We can sit for more than 5, 10, 20 minutes as per your desire. Yes. Any question? देखिए, आज तो हमारा खुद का सेशन है, नो इश्यूज, बट रूटीन में आप लोगों ने 5-7 क्वेश्चन अपने माइंड में जरूर रखने हैं। Yes, one question shall we only mention the operational statement in your research paper, or we shall write other statement as well. Palak, can you unmute yourself? So that I can get a good idea. Yes, please. So my question is like, as you mentioned that we need to work only on our operational statement, like whatever statement for stress, if we choose one person and we are working on that statement, then when we are writing our research paper, shall we mention that statement only, or we can like in generalize we can mention the other statements, and while working we'll like be specific in the statement? Palak, there are two, 3 things hidden in your question. One, you're talking how to represent your research problem in a research paper. The statement is basically one. Research problem, research statement is a one which comes at the front page of your research project. That is your research statement or your research problem. अब उसके बाद जो उसके सब पार्ट्स होते हैं, जब उसको आगे हम और ज्यादा क्लैरिफाई करते जाते हैं, दैट बिकम्स द रिसर्च ऑब्जेक्टिव एंड रिसर्च हाइपोथेसिस। अगर आपके रिसर्च में 4 वेरिएबल्स हैं, आपने चारों वेरिएबल्स पे आगे रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स बनाए हैं, दोज आर द सब पार्ट्स ऑफ योर रिसर्च। अगर आप एक रिसर्च पेपर लिख रहे हैं, रिसर्च पेपर में 2 बातें हो सकती हैं। अगर आपकी रिसर्च का एरिया बहुत लार्ज है, आप अपनी रिसर्च को डिफरेंट पार्ट्स में भी पब्लिश कर सकते हैं ना रिसर्च पेपर। किसी 2 वेरिएबल्स को एक रिसर्च पेपर में डाल दें, अगले 2 वेरिएबल्स को नेक्स्ट रिसर्च पेपर में डाल दें, अगर आपका रिसर्च डिजाइन ये अलाउ करता है कि आप इसको ऐसे भी स्टडी कर सकते हो, इसको ऐसे भी स्टडी कर सकते हो। अगर उनमें इंटरमिंगलिंग इतनी ज्यादा है, इंटरडिपेंडेंस इतनी ज्यादा है, यू कांट separate the results, then you have to put all things in one paper, research paper. Then your statement will be similar to your research statement in your research project. आप उसको कैची बनाने के लिए रिसर्च पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा बहुत ऑल्ट्रेशन कर सकते हो, लेकिन जो आप रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए सेंड कर रहे हो, जो रिसर्च प्रपोजल के लिए सेंड कर रहे हो, दैट शुड बी justifiable, manageable research statement. It should not be too broad or too specific. Is it okay? Yes sir, got it. Fine. Thank you sir. Okay student, you can switch on your videos also, as organizer have to take a group photo. अच्छा सर, So you can start your video रमन तो से उत्तर हो जाओ, so that we can take a group photo. कनेक्शन आना तो नहीं आ रहा है, थोड़ा होल्ड करो। रमन 1 मिनट वेट करियो सर की बारी। मिन्नी तुसी भी अपना वीडियो ऑन करो।
I will share all the notes in a PDF format in your value added course. You can go through the slides and कोई भी information ultimate नहीं होती. आप 7 दिन इस प्रोसेस में रहोगे, हो सकता है रिसर्च के कोई पॉइंट मेरे से डेविएट भी करे किसी सेशन में, क्योंकि रिसर्च में कुछ भी फिक्स नहीं होता. I have tried my best to collect the material from different resources. Still, there can be a point of discussion at any stage in your course. So आपने दोनों पॉइंट को नोट डाउन करना है. Then you can go for comparison of the things. कि एक में कंपैरिजन ये है, दूसरे में कंपैरिजन ये है, क्योंकि हर एक रिसर्चर का अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है, वो उसी वे से उस चीज को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है. So I think after the session, you must go through the different steps of defining a research problem, sources of research problem, criteria of research problem. So जिन्होंने रिसर्च प्रॉब्लम चूज कर रखी है, दे कैन नाउ इवेल्युएट कि आपकी रिसर्च प्रॉब्लम कितने पैरामीटर्स को फुलफिल करती है. जिन्होंने सिलेक्ट करनी है, नाउ दे कैन डिसाइड, चाहे वो बीएड में है चाहे एमएड में, कि हमारी रिसर्च प्रॉब्लम कैसी होनी चाहिए. और इसके साथ साथ जैसे मैंने अभी बोला था कि ऑल द स्टूडेंट मस्ट बी रेडी टू आस्क फ्यू क्वेश्चन टू द रिसोर्स पर्संस. आज के सेशन में आई विल बी द रिसोर्स पर्सन फ्रॉम आवर इंस्टीट्यूशन. Every day you will be meeting with very experienced persons who have spent a number of years in research. So you must be ready with some questions. जितना आप उनके साथ interact करोगे in between the session, after the session, that will be fruitful for you people. Okay. So with these words, I'm really thankful to the organizer to give me a chance to interact with the student on this very important topic. I'm hopeful that के सभी मीडियम के बच्चों ने कुछ ना कुछ गेन किया होगा. मैंने जितना सिंपलेस्ट लैंग्वेज में बात कर सकता था, आई हैव ट्राइड माय बेस्ट कि रिसर्च की बातों से बाहर निकलकर लाइफ से रिलेट करके कोशिश करूं. सो अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, यू कैन आस्क इन योर value added course group also, and the notes will be served to you people in a value added course. Thank you very much. Thank you so much, sir. Thank you for giving a bird's eye view in a very short span. You have actually summarized the topic, and it was very pictorially presented. So I think the students must be very clear with this now. And you can, students, consult sir. Sir is always there. He has been teaching research for many years. So if you have any doubts, you can contact him later also. Now, first of all, I want to thank you, our respected principal, sir. And at the next place, I want to thank all the students because you gave your presence throughout the session. So that is wonderful. Now, a little homework. Tomorrow, we are going to discuss, Ramana, what is the topic tomorrow? Just whatever topic is there, just do a little bit of homework so that you can ask questions to the resource person in front of the outside experts. We should show that we have studied research in 3 semesters. So आपने पढ़ी हुई है रिसर्च, वो रिफ्लेक्ट होना चाहिए. अपना जो भी कल का टॉपिक है उस पर थोड़ा सा होमवर्क कर लीजिए. आपके पास रिसर्च की बुक्स है, नहीं तो नेट पे सब अवेलेबल है. Okay, we will be talking about framing research objectives and hypotheses. So वो थोड़ा सा चैप्टर आप अपनी बुक्स में से देखिए, उससे आपको हेल्प होगी. अपना साइनॉप्सिस, अपनी थीसिस की ऑब्जेक्टिव, हाइपोथेसिस अपने पास रखिए ताकि आपके लिए कल का यूजफुल हो सेशन. ठीक है. तो आज के जो बच्चे थे मॉडरेटर्स, आई होप दे हैव नोटेड डाउन all the important points, like sir has talked about the definitions of research, the types of research, and he has also talked about the different steps in conducting the research, sources of problem, framing the title, do's and don'ts, and the criteria also. So I just hope you have noted them down, and please complete the report by this night so that tomorrow in the morning I'll make the necessary additions and you have to present the summary. So tomorrow Kiranpreet will be presenting the summary when we join again. Everybody should join by 2:15. We will spend first 5 minutes in presenting the summary. And if there is any doubt, you can ask in the group we have created. Thank you so much. Have a nice day, students. Thank you, sir. Thank you. Off from this side. And the attendance link is there. Don't forget to mark your attendance, please. Chat box. Okay, thank you, and congratulations to all the students for joining this course.
and hopefully your teachers are doing wonderful work, very hard work to give you a best resource person and best material. So अगर आप उतने ही hard work से इसको join करोगे, you will remember this course for a long time. Thank you very much. बेटा, should we call off the meeting? Have you taken the link? क्योंकि वो link disappear हो जाएगा. बेटा, WhatsApp ग्रुप में मैं A mediocre teacher explains, a good teacher demonstrates, and a great teacher inspires. A journey which began over 100 years ago. This is the story of Guru Har Gobind Sahib Khalsa College, also known as the Wonder in Rural Hinterland.